So these five arts are very, very important when you are approaching for geography. Why? Because this is a very technical subject. You need practice. Geography थोड़ा technical हो जाता है with respect to climatology, then it becomes very important that you have a proper guidance. वो guidance बहुत important होती है because you must be knowing, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ डेफिनेशन बता दूं, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. इफ आई एम यूजिंग सम some examples, some storytelling methods, and then some body gestures to make you understand, then that will become very, very easier for you to understand. We have read all the current affair news. हमको पता है कि करंट अफेयर में क्या क्या है, हमको पता है कि बेसिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया. बट आर वी डूइंग द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यूपीएससी क्या पूछ रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए. सो यू हैव टू डेवलप, बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग, and that understanding is not a one day process. Definitely you can have better prediction if you understand what type of question UPSC is asking. तो ये एक probable areas है, because आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ, कोई भी बंदा या बंदी आपको ये नहीं बोलेगा कि 100% यही सवाल आने वाला है यूपीएससी में. अगर कोई बोल रहा है तो वो फेक कर रहा है. आई विल से कि आप भगवान नहीं हो, यूपीएससी में आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स ऐसे हैं वेयर यू विल नीड गाइडेंस, इंटरवेंशन विच विल मिनिमाइज योर प्रिपरेशन टाइमिंग. जो भी आप लेक्चर देखते हो, एनी लेक्चर यू कैन सी द गुड वन, नॉट द टाइम वेस्टेज लेक्चर्स. आपका लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहां से देख रहे हो आपको एग्जैक्ट एप्ट information मिल रही है. So if you are getting that apt information, then that is well and good. Otherwise, don't waste your time in wasting seeing so many lectures from YouTube or इधर उधर के foundation से. It is not going to help you. So good evening everyone. So let's start the discussion. So first of all, let's understand. So here the structure of this webinar will be, first of all, I will be discussing the issues that all of you are facing. I hope all of you are comfortable in English. So if any of you have some problem with English, then you can tell me. I can also have like discussion in Hindi as well. Okay, fine. So I think we have aspirants from both the languages, Hindi and English. Fine, we'll be discussing in both the languages. So yes, so the structure of this entire webinar will be, first I'll be discussing about the issues, and then we can talk about what can be the approach, right? And then we'll be discussing about the geography as the main subject, and in the geography I'll be taking some of the PYQs. Most of the PYQs I have taken. I have taken PYQs of physical geography as well as of human geography. And then I will be discussing that how one should approach for this subject. And definitely we have discussed about the issues. And then we can also, then we will also be discussing that what is the way forward, right? So definitely, I think if you have seen my the pre-webinar post, you have heard about the this particular slide in which I have discussed about the issues that is faced by the students. आखिर जो students होते हैं उनकी क्या दिक्कतें आती हैं while preparing for geography. Why? Because if you see this subject geography, it's quite technical in nature. अगर मैं physical geography की बात करूं तो ये बहुत technical हो जाता है, especially with respect to the subject called climatology. Guys, you all can have discussion at the end of this webinar. So if you see the syllabus of geography, it's quite vast. Vast इसलिए भी है क्योंकि we have both the themes, that is physical geography as well as a human geography. Now within this physical geography, there are a lot of technical subjects which includes climatology, oceanography, geomorphology, right? And then yes, definitely when we are talking about India, Indian monsoon जो है वो भी बहुत technical हो जाता है, समझ में नहीं आता है. ठीक है. Now this subject in itself is a very vast, because physical geography yet the syllabus is defined, but for human geography anything is asked, कुछ भी पूछा जाता है. And I'll also showing कुछ भी नहीं पूछा जाता है. It has some base. Whatever UPSC is asking, it has some base. You cannot say that UPSC is asking anything, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ बेस रहा है. एंड वो बेस जब आप नहीं समझते हो तभी आपको दिक्कत आती है. ठीक है, तो मैं उसकी भी बात करूंगी कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वेयर द पार्ट दैट पार्ट इज लैकिंग, वेयर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस पार्ट. देन reading NCERTs, like everyone will tell you that in geography especially 6 to 12th की NCERT बहुत important है, especially 11th and 12th की physical geography, human geography बहुत important है. Everyone will you will hear this from each and everyone, right? But even if we are doing the NCERT, are we able to solve the questions that are asked in UPSC, चाहे वो prelims का हो या mains का हो? ठीक है, क्या हम solve कर पा रहे हैं? नहीं, हम solve नहीं कर पाते हैं. वाई? क्योंकि आप बोलोगे कि मैम ये एनसीईआरटी से आया तो है पर पता नहीं इसको सॉल्व कैसे करें. नाउ अगेन दैट पार्ट इज लैकिंग, द अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज लैकिंग, राइट? देन विच आर द सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटीज, विच आर द सोर्सेज दैट वी शुड रेफर, राइट? दिस इज ऑल्सो द इशू, बिकॉज कोई आपको बोलेगा जीसी लियोंग पढ़ लो, कोई बोलेगा खुल्लड़ पढ़ लो, कोई बोलेगा माजिद हुसैन पढ़ लो एग्रीकल्चर के लिए,
तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आती है while you are preparing for geography. Now then again map becomes very important because geography is all about space and location. हम जब भी ज्योग्राफी की बात करते हैं, हम ज्योग्राफी की बात कर ही नहीं सकते हैं जब तक हमने स्पेस की बात नहीं की है और लोकेशन की बात नहीं की है. एंड हेंस मैप्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी. सो वी कैन नॉट लीव दिस पार्ट. नाउ अगेन there's a problem that like how to do the map part, right? Then current affairs, right? We have so many things that we read in basics, and time and again there are so many topics which will it will reappear from time to time in the current affair part. आप न्यूज में बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं, आप उसके बारे में काफी बार जो होता है रिकरेंस होता है. विच आर दोज टॉपिक्स लाइक साइक्लोन्स है, देन यू हैव हीट वेव्स, यू हैव थंडरस्टॉर्म्स, you have several other weather phenomena and other issues as well, right? तो आप आखिर एनसीईआरटी से कैसे लिंक कर सकते हैं करंट अफेयर्स वाले पार्ट को, दैट ऑल्सो, और द बेसिक से करंट अफेयर आप कैसे लिंक करो, दैट इज ऑल्सो द इशू. Linkages between current affairs and the basic syllabus. And then yes, definitely I have heard from many students, ma'am, we have read so many things, I know everything, I have understood everything, but yet when the question is coming I am not able to write it. मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ. ठीक है, तो आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं या फिर किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वेबिनार. सो आई एम जस्ट चेकिंग द द मैसेजेस, आई थिंक. ओके, सो ऑल ऑफ यू, लाइक आई विल रिक्वेस्ट दैट यू कैन हैव द क्वेश्चन लेटर. जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आप मुझसे ये सारे सवाल पूछ सकते हो. विल कीप ऑन डिस्कसिंग. ओके ओके. यस यस कनिका, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स. कैसा क्वेश्चन आ रहा है और आपको कैसे प्रिपेयर करने की जरूरत है. सो द थिंग इज दैट what should be the how you should prepare, right? So I will say that you have to divide your preparation level at the three levels. One is the basic. जब मैं बेसिक की बात कर रही हूँ, then you have to prepare all the basic portions, जो कि when you see the syllabus of UPSC it's quite vague. आपको पता नहीं चलता है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, बट स्टिल यू हैव सम ऑफ द पोर्शंस लाइक क्लाइमेटोलॉजी में यू हैव टू रीड विंड पैटर्न्स. ओशनोग्राफी में आपको मालूम है कि करंट के बारे में पढ़ना है. देन जियोमॉर्फोलॉजी में आपको मालूम है कॉन्टिनेंटल रिफ्ट एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रीड, राइट? सो बेसिक तो पढ़ते हैं और सब लोग पढ़ते हैं. ठीक है. नाउ इंटरमीडिएट लेवल जो होता है बेसिक के बाद, वंस यू हैव फिनिश द बेसिक, सो यू कैन नॉट स्टार्ट विथ एडवांस लेवल, you cannot start with the intermediate level, you have to start with the basic. So for the basic definitely आपको बेसिक जो फाउंडेशन है वो कंप्लीट करनी ही करनी है. ठीक है, अब फाउंडेशन आप चाहे कहीं से भी कर लो, हार्डली मैटर्स, बट यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. नाउ कॉन्सेप्ट अगेन, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेटोलॉजी, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस. वो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग. क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ डेफिनेशन बता दूं, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. इफ आई एम यूजिंग some examples, some storytelling methods, and then some body gestures to make you understand, then that will become very very easier for you to understand. तो बेसिक में भी जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको टेक्निकल डिटेल्स बहुत ही सिंपल वे में समझना है. अगर आप उसको सिंपल तरीके से नहीं समझते हो, देन डेफिनेटली यू आर नॉट, आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा. एंड इवन इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द बेसिक सिलेबस, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. वाई? बिकॉज आपने ठीक से उसको समझा ही नहीं है. सो हेंस बेसिक को समझना और अच्छे से समझना, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंटरमीडिएट लेवल की जब मैं बात करूंगी, इट टॉक्स अबाउट हाउ यू आर एबल टू, बिकॉज यू हैव टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू आर लिंकिंग द बेसिक विद द करंट पार्ट. Okay, so once you have understood the basic, then you must be aware that how you should link it with the current. क्योंकि बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, वेदर फिनोमिनाज हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर मैं बात कर लूँ, आप टाइम एंड अगेन यू विल कीप ऑन लिसनिंग अबाउट द न्यूज विच यू हैव रेड समवेयर इन द एनसीईआरटीज और समवेयर एल्स विच इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी. तो कहीं ना कहीं आपको बार बार वो चीजें स्ट्राइक करेंगी माइंड में. जैसे कि लाइक लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो कुछ न्यूज थे जो फ्रीक्वेंटली आ रहे थे. जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि जो आई मीन नेपाल में एक ग्लेशियर है दैट इज द हाईली रिसर्च्ड ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज गोइंग टू बी वैनिश इन द कमिंग ईयर ऑफ 2040s. Similarly, we have read about the glacier that has already disappeared, Humboldt Glacier of Venezuela. Similarly, we have read about the news about Antarctic का जो एक largest ice shelf है वो टूट के हट चुका है, गिर चुका है, निकल चुका है, and it is going to increase the sea level in the coming future. Now all these things are keep on repeating. बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये किससे रिलेटेड है, सो दीज आर द डिफरेंट करंट अफेयर न्यूज, बट दिस इज रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर थीम कॉल्ड क्लाइमेट चेंज.
है ना, या फिर आप उसको क्लाइमेटोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो कि हाउ द वेदर फिनोमिना इज चेंजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? Similarly, so you have to develop that understanding that you are reading several news and you have to link that with the basic part. Third is, again, we have read all the current affair news. हमको पता है कि current affair में क्या क्या है, हमको पता है कि basics में हमने क्या क्या पढ़ लिया, but are we doing the analysis of previous year questions? So this third is equally important. I will say it becomes more important, because if you have not done the analysis part, आपको, आप चाहे कुछ कर लो, आप current पढ़ लो, बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर कर लो करंट के, बेसिक्स के, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू राइट हियर, ओके? सो डेफिनेटली एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है? आई एम एक्सपेक्टिंग, और नॉट एक्सपेक्टिंग, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो PYQs है, बिकॉज मेनी ऑफ यू might be appearing for 2026 or 2025, I am not aware, but definitely आपको क्वेश्चन, previous year questions मालूम होने चाहिए. Then I can connect it that with the basic part, and I can also connect it with the current part, right? So UPSC क्या पूछ रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए. So you have to build that understanding, and that understanding is not a one day process. It's a very long process that will come slowly and gradually with the practice, ठीक है? तो मैं एक एक करके कुछ आपको चीजें दिखाऊंगी. आई विल टेक बोथ फिजिकल ज्योग्राफी, आई विल टेक ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस दैट हैव अराइव्ड, और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? एंड व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, ओके? रिपीट भी होता है अनुष्का, आई विल शो यू, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इफ नॉट द क्वेश्चन, डेफिनेटली द थीम विल कीप ऑन रिपीटिंग, ओके? सो लेट्स सी. पहले मैं कुछ दिखाती हूँ आपको, देन वील हैव सम डिस्कशन, इंटरेस्टिंग डिस्कशन. एंड आई रियली वांट दिस डिस्कशन टू बी इंटरैक्टिव. एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस. तो मैं चाहती हूँ कि आपका पूरा का पूरा अटेंशन जो है, जो भी मैं स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, राइट? तो आपका पूरा अटेंशन जो है मेरे पूरी स्लाइड्स पे होनी चाहिए. वॉट एवर आई एम सेइंग, प्लीज हैव focus on that. So this is the topic from physical geography, cyclone, right? Now cyclone is a part of your basic syllabus जो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे. आई थिंक दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट, क्लास 11th बुक इन दिस फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ये डायग्राम है और आप सब लोग इसके बारे में पढ़ते हो. एंड अगर इस डायग्राम को आप इग्नोर भी करो, तो देन डेफिनेटली दीज टाइप्स ऑफ डायग्राम यू विल कीप ऑन हियरिंग टाइम एंड अगेन, आप, ठीक है? देन आप देखेंगे कि क्या यूपीएससी यही पूछ रहा है. Are the questions of UPSC, are they asking directly from these part, or are UPSC, the questions in the UPSC is different, a bit different, okay? So let's see. तुम, आई थिंक सबने, आप सबने, जब भी आप साइक्लोन पे जाओगे, एवरीवन विल रश टुवर्ड्स व्हाट इज साइक्लोन, व्हाट आर द कंडीशन टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन और द टेम्परेट साइक्लोन्स और द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है? तो इस तरह के जो सवाल हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है, आई थिंक आप सब पढ़ते हैं, ठीक है? पर क्या यूपीएससी यही पूछ रहा है? लेट्स सी व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग. So what UPSC is asking, UPSC is not asking about the definition of the cyclone. Rather, it is asking about, sometimes you will see color coding, sometimes you will see naming of the cyclones. PYQ में question आया हुआ है naming पे भी. Cyclone and the climate change, इससे भी सवाल आया है. Different names and location, इससे भी सवाल आता है, ठीक है? Probable areas. Now this is the area which is for the prediction part. आप इसके, ये जो areas है, that remains vague. But definitely you can have better prediction if you understand what type of question UPSC is asking. तो ये एक probable areas है, because आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ, कोई भी बंदा या बंदी आपको ये नहीं बोलेगा कि 100% यही सवाल आने वाला है यूपीएससी में. अगर कोई बोल रहा है तो वो फेक कर रहा है, ठीक है? So definitely there's a probable areas where you can guess, where you can expect what type of questions can be asked in the UPSC, ठीक है? Be it a prelims or the mains part, right? Now ये एरियाज है जहां से यूपीएससी पूछता है. नाउ यू सी these question what UPSC is asking. So these have been asked with respect to this topic called cyclone, जिसमें आप देखेंगे tropical cyclones are largely confined to South China Sea, Bay of Bengal and Gulf of Mexico. Why? ठीक है? अब आपको मालूम है साइक्लोन क्या है, आपको सब कुछ मालूम है, पर क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हो? इवन इफ कर रहे हो, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं? इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 10 marks, you are just getting 2 marks. 2.5, 1.5. Why? Because you are not actually attempting the question which is required in this, which is required to write in this question, right? Then a recent cyclone on the east coast of India was called Felin. How are the tropical cyclones named across the world?
ठीक है ना, आपको पता चल गया सब कुछ, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है कि नेमिंग क्या होती है, आप फंस गए। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर द साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय आईएमडी। ठीक है, अगेन आप ये देखोगे कि इन्होंने क्या पूछा, कलर कोडिंग पूछ लिया। आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके गए हो कि भाई ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का डेफिनेशन, वो डिफरेंस पूछ देंगे, पर वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कलर कोडेड सिस्टम, राइट। What is the sea surface temperature rise? Now again you see they are mixing two topics, that is climate change and its impact on the formation of tropical cyclones, और कैसे इफेक्ट अफेक्ट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द सी सरफेस टेम्परेचर राइज। ठीक है, व्हाट इज ट्विस्टर, अभी ये रिसेंट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेजॉरिटी, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स observed in the area around the Gulf of Mexico? Now this is the question which is related to thunderstorm, not exactly the cyclone, but वहां पे एक चीज बिल्कुल कॉमन है हर जगह इन सारे ही क्वेश्चन में, कि आपका लो प्रेशर तो बनता ही बनता है, लो प्रेशर विल डेफिनेटली बी फॉर्म इन एनी टाइप ऑफ साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म इटसेल्फ, राइट। सो ये सारे सवाल यूपीएससी में आ रहे हैं। अब ये सारे जो सवाल आए हैं यूपीएससी में, क्या ये बेसिक के थे? डेफिनेटली द थीम इज फ्रॉम द बेसिक, बट दे आर लिंकिंग दिस विद द करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में मैंने इनफैक्ट मैंने न्यूज देखा है, लास्ट के 2-3 साल के न्यूज़पेपर मैंने, आई वाज गोइंग थ्रू इट, आई वाज सीइंग द क्वेश्चन, आई वाज गोइंग थ्रू इट। तो उस पर्टिकुलर ईयर में इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, ये सारी ही चीजें मेंशन्ड है। ठीक है ना, दे हैव मेंशन अबाउट द कलर कोडेड सिस्टम, बहुत ही एक बड़ा सा आर्टिकल था, दे वर राइटिंग ऑल दीज डिटेल्स। देन ऑल्सो कि किस नेमिंग कैसे होती है साइक्लोन्स की। ठीक है, तो ये सब आपका करंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली बेसिक इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू आर एबल टू रिलेट दैट थिंग विद द बेसिक, एंड अगेन हाउ यू कैन डू इट। सो इफ यू आर रीडिंग अ साइक्लोन, देन कीप ऑन राइटिंग जो भी आपने करंट में पढ़ा है अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कीप ऑन राइटिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, सो लेट्स सी। अब आप ये देखिए, दिस इज द माइक्रो थीम। ये जो माइक्रो थीम है, दिस इज द माइक्रो थीम ऑफ ज्योग्राफी। This is the micro theme of geography, and if you see here, these are the micro themes from where the UPSC is asking question, जिसमें कि water management है, geomorphology है, climatology है, primary sector, secondary sector। तो ये सारे ही आपके टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी सवाल पूछता है और साल दर साल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मेंशन्ड है। So these are the micro themes. So what I am doing is, so okay, I'll show you one more slide here. Now see, this is the UPSC syllabus. ठीक है, यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है, दीज आर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, वेयर vaguely they have mentioned about the world's physical geography, vaguely they have mentioned about the key natural resources, important geophysical phenomena। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 टॉपिक उठा रही हूँ यूपीएससी के सिलेबस में से। आई एम पिकिंग द 2 टॉपिक्स हियर, ओके। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस सिलेबस। नाउ यू सी द टॉपिक कॉल्ड जियोफिजिकल फेनोमेना, ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, and then geographical feature and their location। ठीक है, so first of all we all have to know what is the syllabus which is given in the geography in the UPSC syllabus। ठीक है, तो यूपीएससी में हमको मालूम होना चाहिए क्या है। अब let's try to break it down। ये जो जियोफिजिकल फेनोमेना है, पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, because if you will not break it down, if you will not understand the pattern of questions that are asked, then it is going to be very difficult। अब ये जो जियोफिजिकल फेनोमेना है, based on the current based on the basic portion जो हम बेसिक में पढ़ रहे हैं, that is NCERT, are we able to structure it in this geophysical phenomena? That becomes very important। So see here, यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये मेजर थीम है जो यूपीएससी का सिलेबस है, दैट इज जियोफिजिकल फेनोमेना। नाउ दिस जियोफिजिकल फेनोमेना बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी हैव रेड इन द एनसीईआरटी एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन यूपीएससी। अब वो मैंने कैसे पता किया? वो मैंने पता किया माइक्रो थीम्स के बेसिस पे। जो माइक्रो थीम मैंने आपको यहाँ दिखाया ना, ये माइक्रो थीम बने हैं आपके जो क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हैं। नाउ इन माइक्रो थीम्स का एनालिसिस किया है मैंने कि आखिर वो जियोफिजिकल फेनोमेना के किस पार्ट में बिलोंग करता है। ठीक है, नाउ यू सी द मेजर थीम इज जियोफिजिकल फेनोमेना विच यू कैन सी फ्रॉम हियर। नाउ let's divide it into the micro theme। So micro theme can be divided into weather phenomena, वो भी जियोफिजिकल फेनोमेना का पार्ट है। जियोमैग्नेटिक फिनोमेना, तो जियोफिजिकल फिनोमेना will include everything, be it is related to environment, it is related to different types of phenomena that are occurring। It could be due to endogenetic forces और exogenetic forces। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे वेदर फिनोमेना है, जियोमैग्नेटिक फिनोमेना है, जियोलॉजिकल फिनोमेना है, एंड देन द लास्ट वन इज द कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी। तो ये सारे ही डिफरेंट फेनोमेनाज हैं जो आपको धरती पे देखने को मिल जाएंगे, एंड यू विल ऑल्सो सी द एसोसिएटेड
disasters or the weather pattern which is associated with these phenomena. Now again I will subdivide it. जो यूपीएससी में सवाल आया है या फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इन केस नहीं आया है तो आ सकता है. सो यू हैव वेदर फिनोमिना. नाउ विद इन वेदर फिनोमिना यू हैव रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, you have cyclones, you have lightning, you have heat waves. So you might not have seen the questions from this heat wave, अभी तक नहीं आया है. But again it becomes part of the weather phenomena which is again part of geophysical phenomena. और हीट वेव के भी बारे में आप बार बार न्यूज सुनते ही होंगे, उसमें भी कलर कोडिंग चलती है फॉर हिली एरियाज, फॉर कोस्टल एरियाज, फॉर प्लेन एरियाज. सबके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं कि आप कब हीट वेव बता सकते हो. आईएमडी करता है और क्या है क्राइटेरिया वो भी डिफरेंट है. ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट जो प्रोबेबल एरिया मैंने आपको दिखाया ना, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, नाउ जियोमैग्नेटिक फेनोमेना, अडोरा से क्वेश्चंस आए हैं, डेफिनेटली आए हैं. मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो जो जियो डायनमो है, जो आपकी अर्थ की कोर है, दैट इज अ लिक्विड कोर. जो आउटर कोर है वहां पे लिक्विड है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम प्रेशर वो जो है वो लिक्विड में है, एंड बिकॉज इट इज मूविंग, द अर्थ इज मूविंग, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. बट दैट मैग्नेटिक फील्ड कीप्स ऑन चेंजिंग. अभी रिसेंटली न्यूज आया था कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स साइबेरिया, है ना, तो वो करंट का पार्ट हो गया. बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर जियोफिजिकल फिनोमिना. So what I am trying to convey here is that you must be knowing, you should have developed that understanding that how you can subdivide and you can structure all those phenomena and how you can relate those phenomena with respect to the UPSC syllabus कि आखिर वो किस डोमेन में फॉल कर रहा है. ठीक है, तो करंट का भी हो गया, आपका बेसिक भी हो गया, एंड देन यू ऑल्सो नो दैट विच पर्टिकुलर पोर्शन इट इज बिलोंगिंग टू. देन जियोलॉजिकल फिनोमिना आप देखोगे, अर्थक्वेक है, सुनामी है, लैंडस्लाइड पे कितने बार क्वेश्चंस आए हैं कि हिमालयन लैंडस्लाइड्स और जो वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, व्हाट इज द डिफरेंस. वॉल्केनिक एरप्शन से आप देखोगे 2-3 बार सवाल आ चुके हैं यूपीएससी में. कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी में आ जाता है ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. राइट, इट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स हैव फॉर्म्ड, द बिग बैंग थ्योरी, सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट, स्टार्स कब बने, आपके नेबुलास कब बने, आपके प्लैनेट्स कब बने, बिगर स्टार्स कब बने. ठीक है, तो वो पूरी चीज आ जाती है इसमें. सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी कवरिंग हियर इन द जियोफिजिकल फिनोमेना. सो नाउ हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट द साइक्लोन. अब साइक्लोन में भी डेफिनेटली आपको बेसिक तो कंप्लीट करना ही है कि डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस और फीचर्स क्या है इसके बनने के, कहाँ कहाँ होता है, अब कहाँ कहाँ होता है, किस किस लोकेशन में होता है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ these two becomes very important. So everyone are doing this what, how and where, right? But less, like very few are doing this who, कि कौन कर रहा है, and then why. ठीक है, वाई में आपका क्या है, वो अगेन उसमें करंट अफेयर वाला पार्ट आ जाता है कि क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो क्या उससे ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं. ठीक है, और हु में क्या आ जाता है, देन अगेन आईएमडी. नाउ इफ आईएमडी इज डूइंग, व्हाट आर द नेमिंग्स, how it is doing, because IMD is a very important regional player in terms of recommendation of the naming of the cyclones. Then color coding. ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग फोकस करते हैं पर यहाँ पे लोग नेग्लेक्ट करते हैं. आप जाओगे एग्जाम में भी यही सब पढ़ के जाओगे, ये वाला पार्ट छोड़ दोगे. नाउ दीज पार्ट्स आर मोर रिलेटेड टू योर करंट टॉपिक. ठीक है, नाउ अब आप देखोगे ये जो सवाल आया था, ये दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीलिम्स अबाउट द साइक्लोन. सो इफ यू हैव गॉन थ्रू the definition of the cyclone, how it is formed, but you have not gone through this diagram. ठीक है, अब ये जो डायग्राम है दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी itself. पर अगर यहाँ पे आप देखोगे ना गौर से इस डायग्राम को ही, अगर आप इफ यू विल ऑब्जर्व दिस डायग्राम यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिटन इन दैट एनसीईआरटी. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे इन द आई ऑफ द साइक्लोन द एयर इज सबसाइडिंग. ठीक है, एयर जो है वो नीचे जा रहा है. अगर आप यहाँ पे क्यूरियस नहीं होते हो कि भाई ये क्यों सबसाइड कर रहा है, ऑल्दो दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, वेरी बेसिक थिंग है ना, हम सबको मालूम है, बट आप यहाँ पे क्यूरियस हुए ही नहीं, यू जस्ट स्किप दिस पोर्शन एंड यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम दिस पोर्शन. राइट, तो अगेन एनसीईआरटी को तो पढ़ना है बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, in depth analysis, in depth understanding of each and every diagram, each and every word that is written in the NCERT. That becomes very important. तो अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होता ये इस वाले डायग्राम को, so you could have solved this question, which lots of students considered as a very very tough question. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर only some cyclone develop an eye and the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius
lesser than that of the surroundings. तो ये वाला जो है ना थर्ड ऑप्शन, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर दोगे जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर ओनली. नो, इट्स करेक्ट, इट्स क्वाइट इनकरेक्ट, क्लियरली इनकरेक्ट. Only some cyclones develop an eye. So here they are not specifically asking about tropical cyclones. Rather it is talking about the temperate, like cyclone है तो cyclone में तो temperate cyclone भी आ जाता है. Now temperate cyclone में हमेशा आप नहीं देखोगे कि आई की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है. तो अगेन ये बेसिक वाले पोर्शन से आप कवर कर सकते हो. बट द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग. अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई जो है वो मेन एरिया है जहां से वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और वो डेवलपमेंट इसलिए स्टार्ट हुई है बिकॉज दैट एरिया इज वेरी हीटेड. It's very heated area and the slowly and gradually the movement is starting from that eye area. So definitely यहाँ का जो temperature है ये ज्यादा होता है as compared to the other areas, as compared to the wall area. ठीक है. Okay guys. Now let's see some more things. तो मैंने वहां पे आपको पहला दिखाया जियोफिजिकल फेनोमेना विच इज गिवन इन द यूपीएससी सिलेबस. नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस. ओके, जो कि आपको वर्ल्ड एंड just a minute guys, I'll just so geographical features and their locations, world physical geography. ठीक है. Now again geographical features and their locations and again world's physical geography. Now what are the things that are coming under this particular major theme that is given in the UPSC syllabus? तो ये major theme है आपकी UPSC syllabus का. Again further आप इसको subdivide कर सकते हो. How you can subdivide? You can subdivide, you can take a major subjects क्योंकि it is talking about world's physical geography. तो definitely world's physical geography में geomorphology है, climatology है and oceanography है. Now within this geomorphology, how you can subdivide? डेफिनेटली जियोमॉर्फोलॉजी में आप मेन क्या पढ़ते हो? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ते हो, यू रीड अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, यू रीड अबाउट रॉक्स, यू रीड अबाउट द लैंडफॉर्म इवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट. दीज आर द मेन थीम्स दैट यू स्टडी. क्लाइमेटोलॉजी में यू रीड अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देन द डिफरेंट वेदर फिनोमिनाज लाइक एल नीनो, ला नीना, मेडनजुलन ऑसिलेशन. उसी का फर्दर एक्सटेंडेड पार्ट है इंडियन मॉनसून. ठीक है. आप एयर मास के बारे में पढ़ते हो, आप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हो, वेयर यू रीड अबाउट the permanent winds or the planetary winds. Then finally we have oceanography. ठीक है. Ocean currents है, ocean salinity है, ocean or the sea pollution and ocean resources है. Now I have divided my syllabus. I know this is a major theme. Now I know which are the portions of from where UPSC is asking. Again guys, I am telling you that these division is on the basis of the questions or the micro themes. जो micro themes है उसके basis पे ही ये सारा का सारा division मैंने यहाँ पे किया है. ठीक है. तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो यूपीएससी में आए हैं विथ रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द सिलेबस, you need to structure the syllabus, right? So whatever you are reading, you must be knowing where you have to place it. Now once you know where you have to place it, you must be knowing what you have to study. ठीक है. पढ़ भी लिया, आपको समझ में भी आ गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई आपकी, आपको मालूम भी है कि कहाँ पे पढ़ना है, किस पोर्शन से बिलोंग करता है, यू नो वेयर इट इज, करंट का किस पोर्शन का पार्ट है. नाउ फॉर द आंसर राइटिंग पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर. अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया वहां पे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये जो है जो मैंने आपको सारे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन दिखाया. सो दिस इज द पोर्शन फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ठीक है. नाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अगेन in NCERT there is a dedicated chapter which talks about continental drift, and the questions, you see the questions, what do you understand by the theory of continental drift? Discuss the prominent evidences in its support. So now we all know वेगनर की थ्योरी आई थी, और जो उसके सपोर्ट में एविडेंसेस हैं वो बहुत सारे हैं. सो एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड फ्यू ऑफ द एविडेंसेस, बट यू विल कीप ऑन हियरिंग इन द करंट पार्ट दैट यू विल हियर कि यहाँ पे कुछ फॉसिल मिला, यहाँ पे कोई रिमेन मिला, यहाँ पे कोई रॉक मिला जो कि नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, राइट? सो दीज आर द एविडेंसेस विच वी आर कीप ऑन इवॉल्विंग, जो हमको अभी मालूम चल रहा है in the current part. So along with that basic thing which you have read, you have to keep on updating. Again, यहाँ पे क्या important है? Basic with the current, right? So whenever you are hearing about those topics which are mentioned in your NCERT, you have to update yourself. ठीक है? Then why is India considered as a subcontinent? Elaborate your answer. So this is also related to continental drift. ठीक है? अभी और questions देखते हैं. ये वाला जो portion है, because we have so many questions, I have to show you so many questions. Geomorphology, plate tectonics. ठीक है.
cause and characteristics. अब आप देखेंगे there are so many questions which is asked from this particular area in the NCERT. If you see, these are the this is a chapter, exact chapter जहाँ पे we are talking about जहाँ पे NCERT has talked about plate tectonics and the movement of the plates, right? Now you see a lot of questions are asked from this area. Define mantle plume and explain its role in plate tectonic. Geophysical characteristics क्या है circum-Pacific zone का. Explain the formation of thousands of islands in the Indonesian and the Philippine archipelago. Briefly mention the alignment of major mountain ranges of the world and explain their impact on local weather condition. Why are the world's fold mountain system located along the margins of the continent? ठीक है. Now there's a one topic and you see several questions from year to year UPSC has asked. So definitely it is expected from all of you. So when you're preparing such topic, which is a very vast, a major topic of UPSC, you have to cover it thoroughly. तो जब आपने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा, डेफिनेटली आपने वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में पढ़ा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में पढ़ा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के बारे में पढ़ा, एंड द फीचर्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट. तो एक बार में ही जब आप करंट बेसिक पढ़ रहे हो, यू हैव टू कीप ऑन कंप्लीटली कवरिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. आपको उसको एक साथ ही इकट्ठा करके पढ़ना है. डोंट डू इन द फ्रैगमेंटेशन में मत करो, एक साथ ही करो. और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? जब आप क्वेश्चन देखते हो तब ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होती है स्लोली एंड ग्रेजुअली. ठीक है. तो कई बार मैं अपने क्लास जब when I take my foundation lecture, I keep on telling the students that how you have to cover this one particular topic entirely in 1 or 2 page or the 3 pages, where you can have all the information, जहाँ पे आपको सारी की सारी information एक जगह पे मिल जाएगी. ठीक है. एंड डेफिनेटली अगर आप एक साथ प्रिपेयर करते हो ना, सो इट बिकम्स वेरी इजी एंड योर टाइम कंजम्पशन विल ऑल्सो बी लेसन. जो आप वेस्ट करते हो टाइम, दैट यू आर मेकिंग सो मेनी नोट्स एंड यू आर रेफरिंग टू दोस, सो दैट विल ऑल्सो बी लेसन. एंड इन द यूपीएससी टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग. वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. जियोमॉर्फोलॉजी में रॉक से भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स. अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, इंडिया फिजिकल, not India Physical, Fundamental of Physical Geography. Okay. Now this chapter, which is a very long chapter, which comes under geomorphology, landform, evolution and development. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप क्या है. अब जब ये सवाल आया था, how are the fjords formed? Like many students, they came to me, ma'am, how, from where these fjords have been asked, we have never read about it. So when you are reading the NCERT ना, आप बहुत कुछ skip कर रहे हो. You're not reading, you're not doing the active reading. If you see here, this is the fundamentals of physical geography class 11th. यहाँ पे fjords exactly mentioned है. ठीक है. अब डेफिनेटली आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो ना प्रिपरेशन, सो यूपीएससी के लिए कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि यू विल रीड द एनसीईआरटी एंड यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन. इट रिक्वायर्स फर्दर अपडेशन, बिकॉज 12th के बच्चे में तो यही पढ़ रहे हैं ना, 11th 12th के बच्चे, तो आपको फर्दर तो उसमें इंप्रूव करना ही पड़ेगा. सो वट एवर थिंग्स दैट आर मेंशन, वट एवर द टॉपिक्स दैट आर मेंशन इन द एनसीईआरटी, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद द मटेरियल. तो यहाँ पे फ्यूअर्ड्स के बारे में मेंशन है लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में. एंड ये वाला पार्ट देखो, व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस्क एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. अब ये क्यों है? डेफिनेटली आपको फ्योर्ड के फॉर्मेशन का प्रोसेस जानना होगा. And fjords are also good ports, right? So how fjords are formed, why these are found in the upper latitudes, so ये सब basic का part है जो आपको समझना है while you are preparing for the foundation. जब आप foundation lectures देख रहे हो तभी आपको ये prepare करवाया जाता है along with the class lectures. Now there is a no formation of deltas of river. Again, deltas are what? These are the depositional feature by the fluvial types of land. What is fluvial? Fluvial is when the landform is made by a running water. जब वाटर रन कर रही है उससे जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, दैट लैंडफॉर्म्स कैन बी इरोजनल और डिपोजिशनल. Two types of landform can be formed. So deltas are depositional landform. So now in this particular chapter, you will read about the deltas, that these are the depositional type of landform. But definitely UPSC is expecting that you must be having some more information about the deltas, not just the information that is given in NCERT. NCERTs are definitely important. I am not questioning that. बट आपको फर्दर अपडेट करना होगा. यू मस्ट बी नोइंग हाउ यू हैव टू रिलेट इट. यस कनिका, विल हैव द क्वेश्चंस लेटर. ठीक है. ओके, लेट मी सी. मिनरल में क्या पढ़ना होगा वो भी करेंगे बात रवि. ठीक है. सो यहाँ पे सवाल क्या है? देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास बाय द रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. व्हाई? अब इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको तब समझ में आएगा जब आप डेल्टास के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. नॉट इन डिटेल, बट एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग.
कि उसको बनने के लिए आखिर फ्लैट चीजें चाहिए होती है, फ्लैट सरफेस चाहिए होता है, ठीक है। कोस्ट की तो रिक्वायरमेंट है ही, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ सरफेस वेयर द डिपोजिशन कैन अकर, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड बेसिक प्लस अंडरस्टैंडिंग, ओके। देन यू सी climatology में temperature inversion, again this is the part of your NCERT. Why, what do you understand by the phenomena of temperature inversion, and how does it affect the weather and the habitat of the place? Troposphere is a very significant atmospheric layer that determines weather processes. How, ठीक है। नाउ ट्रोपोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वेदर फिनोमिनाज वहीं पे होते हैं, और कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ग्रेविटी का क्या रोल है, एंड आपकी प्लैनेटरी विंड्स का क्या रोल है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं जब हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। then we read about permanent winds and all these information, there you will get all such information. So what you have to remember that NCERT is giving a limited information, so the topics that are mentioned in NCERTs are very important. So what you have to do, you have to keep on updating. अपडेट तो करना है, बट यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ये आती है ना कि वो टेक्निकल हो जाता है सब्जेक्ट, तो जो टेक्निकल क्लैरिटी है वो आपको कई बार नहीं आता, तो इसी वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, यू फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग, बिकॉज आपका वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो हो ही नहीं पाया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट अ दैट यू गेट अ करेक्ट गाइडेंस। अगर आपके पास करेक्ट गाइडेंस नहीं है, देन फिर आप बहुत कंफ्यूजन में होगा, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स वेयर यू रिक्वायर इंटरफेरेंस फ्रॉम द टीचर और एनी गाइड, ठीक है। जब तक आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर आई मीन सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझते हो, देन इट विल बी बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन। नाउ एयर मास से भी सवाल आया है, एयर मास भी आपके एनसीईआरटी में है, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन क्लाइमेटिक चेंजेस। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन लोकेशन में आप देख लो, मेजर हॉट डेजर्ट्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री। सो नाउ व्हेन वी आर टीचिंग द फाउंडेशन, व्हेन वी आर डीलिंग विद द प्लैनेटरी विंड्स, व्हेन वी आर डीलिंग विद द हाई सरफेस एरिया, जो सब ट्रॉपिकल हाई एरिया है, वहां पे क्यों विंड डिसेंड कर रही है, और विंड के डिसेंडिंग के कारण क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डेवलप होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस व्हाइल वी टेक क्लास। तो वहां पे ये सारी चीजें, इनफैक्ट आपने कहीं से भी फाउंडेशन किया होगा, आई थिंक दे आल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स along with NCERT, the basic clarity that comes from getting to have some lecture or any kind of guidance that you get, तो वहां से ये सारी क्लैरिटी आपकी क्लियर होती है। Now, Indian monsoon is a very important part, dedicated chapter that is there in the India physical environment called climate. वहां पे उन्होंने अच्छे से mention किया है about the Köppen classification, about the how the monsoons are coming in India, when they are going, retreat कब होता है, कितने मंथ में होता है, तो ये सारी चीजें अगेन गाइज आई विल टेल कि यहाँ पे कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। सो 1.5 मंथ जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, आई टेल देम दैट यू हैव टू रिमेंबर ओनली 1.5 मंथ। अब ये 1.5 महीना क्या है, यू विल गेट टू नो। से फॉर एग्जाम्पल, जब मॉनसून आती है वो कितने दिन तक रह रहा है आपके पूरे कंट्री में, देन एट फ्रॉम व्हाट पर्टिकुलर टाइम इट स्टार्ट रिट्रीटिंग, तो उन सब में बस 1.5 महीने का ही फर्क आता है। तो ये सब अगर आपने एक बार ट्रिक जान लिया, तो आपको बस क्या जानना है, यू हैव टू नो द एग्जैक्ट डेट व्हेन द मॉनसून इज अराइविंग इन इंडिया। नाउ यू नो एट व्हाट टाइम इट विल स्टे, एट व्हाट टाइम इट विल स्टार्ट रिट्रीटिंग। तो वो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको आई मीन जो आपको सिंप्लीफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दीज आर द रिपीटेड टॉपिक्स, यू विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एवरी ईयर। ओशनोग्राफी में ओशन करंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, ठीक है। Now, oceanography में again ocean salinity, ocean or sea pollution, ocean resources, these are the areas from where the questions are coming from, all the years you will see some types of questions are coming from oceanography, mineral resources, and then climatology, and then geomorphology. तो ये सारे ही सवाल आपके आ रहे हैं। Now, let's take example of human geography. I hope now you have understood, right, कि कैसे क्या क्या चीजें आपको आपको किस तरह से कंप्लीट करनी है। आई विल अगेन रिवाइज इट वंस वी आर डन विद द स्लाइड्स, आई विल अगेन टेल यू कि हाउ यू हैव टू कंप्लीट। देन ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे, की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो ये मेजर थीम है आपका, ठीक है ना। अब आप देखेंगे अगेन मैं आपको ये माइक्रो थीम्स दिखा रही हूँ, दीज आर द माइक्रो थीम्स यू विल सी, एंड दीज आर द माइक्रो थीम्स विच आर बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन यूपीएससी। तो ये सारे माइक्रो थीम्स हैं, जस्ट हैव अ लुक हियर, यू कैन पॉज एंड यू कैन हैव अ लुक, एंड देन नाउ अभी मैंने आपको क्या दिखाया, आपको मैंने दिखाया ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये क्या है, ये मेजर थीम है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली मेंशन इन द यूपीएससी सिलेबस। नाउ हाउ यू हैव टू कैटेगराइज इट,
अभी किसी का सवाल आया था मिनरल्स कैसे पढ़ें, है ना, अब आपका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा आपको. सो मेजर थीम यू सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. यू सी एनर्जी, एनर्जी को आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. नाउ अगेन दिस इज बेस्ड on the questions that are asked in UPSC. At the same time, this is also based on the NCERT syllabus. NCERT में एक एक चैप्टर मेंशन है आपका. ठीक है ना. सो एनर्जी में आप देखोगे रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल में, रेन्यूएबल में आपके शेल एंड ऑयल गैस आ जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी है, कोल है. सो प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट द क्वेश्चन माइट नॉट हैव आस्क्ड फ्रॉम दीज एरियाज, राइट. बट आप क्या इसको एक्सपेक्ट, आप प्रिडिक्ट क्या कर सकते हो? यू कैन प्रिडिक्ट दैट इफ द क्वेश्चन हैव नॉट बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया, this might be asked in the future. Why? Because first, this is a part of UPSC syllabus का part है. Second important part that this is related to the chapters that are mentioned in NCERT. तो एक तो NCERT के chapters important हैं, ठीक है. एंड दूसरी चीज कि आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखो. ठीक है. तो यहाँ पे देखोगे नॉन रेन्यूएबल में आपके आ जाते हैं, विंड आ जाता है, and then other sources of energy like solar hai. Then agriculture resources mein all crops that is mentioned in the NCERT. Now again students will come and say, ma'am, how we can read about so many crops? So you don't have to read about so many crops. Read those crops which are mentioned in NCERT. Have some more information about it. कि जैसे मैं राइस है, व्हीट है, कॉटन है, कॉफी है, इन सब के प्रोडक्शन में इंडिया अच्छा है. तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन ग्रो करता है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, प्रोडक्शन वाइज कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा है. एटलीस्ट दीज 3-4 इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द क्रॉप्स दैट इज मेंशन इन द एनसीईआरटी. ठीक है. मिनरल रिसोर्सेज में अगेन यू कैन क्लासिफाई मेटालिक, नॉन मेटालिक. ठीक है. मेटालिक में भी आप फर्दर कर सकते हो फेरस, नॉन फेरस. अब अगेन गाइज ये आपको मतलब आप ये नहीं करोगे कि जाओगे पूरे दुनिया में जहां जहां से आपको मेटालिक मिनरल्स मिल रहे हैं सबके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो. नहीं, या तो वो एनसीईआरटी का पार्ट है या फिर वो मेटल लगातार न्यूज में रहा है. यही दो क्राइटेरियाज हैं जो कि यूपीएससी पूछ सकता है, या एनसीईआरटी या फिर करंट अफेयर. ठीक है. और आपके लिए अच्छा यही होगा. सो वंस यू आर प्रिपेयरिंग, अगेन यू नीड अ गाइडेंस इन दैट पार्ट. So when you are reading about a particular metal, you must also be aware about the current development. कि current development क्या चल रहा है, current phenomena क्या चल रहा है. So especially when I take my class, I try to keep on including all these things when I am discussing about these things. Right? ताकि आपकी प्रिपरेशन एक साथ ही पूरी की पूरी तैयार हो जाए. You don't have to waste time while looking here and there, going for so many sources. Then you see the resource potential. This is again a very probable areas from where UPSC is asking question. अब रिसोर्स पोटेंशियल में भी इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सी पोटेंशियल, अब ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है आपके करंट का पार्ट. ठीक है. या तो बेसिक को करंट से करेंगे या फिर डेफिनेटली दिस विल बिकम पार्ट ऑफ करंट. सपोज इन जम्मू कश्मीर दे हैव फाउंड सम न्यू मेटल, दे हैव एक्सप्लोर्ड सम न्यू मेटल, कहीं पे कुछ रिसोर्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर मेटल, दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. ठीक है. ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए these two books are very important, and the chapters that are mentioned in these two becomes very important. But at the same time, the knowledge, the content that is given in these books are not enough. You have to be ready with the some updated material कि क्या सवाल आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है. नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस फिर दिखाती हूँ बैक टू बैक, आपको मैं सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी. लाइक यू सी द क्वेश्चंस फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी. So the question they are asking from these books only, but it requires some additional information, some analysis. अब यहाँ पे था question, whereas the British planters have developed tea gardens all along the Shivalik and Lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh. In effect, they did not succeed beyond the Darjeeling area. Why? Explain. अब यहाँ पे climatic factor था, economic factors था, 3-4 factors थे यहाँ पे. ठीक है. तो exactly you will read these lines from here. यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश प्लांटर्स आए थे दार्जिलिंग में, वहां पे स्टार्ट किया था ग्रो करना, एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, बट यू हैव टू हैव सम अपडेटेड इंफॉर्मेशन. राइट. नाउ दिस क्वेश्चन, from being net food importer in 1960s, India has emerged as the net food exporter to the world. Provide reasons. Now again, this is part of India, People and Economy, जो किताब है आपकी 12th की किताब है. I hope you all are aware about the book's name at least, because I expect you all are UPSC aspirant. तो मुझसे अब ये सवाल मत पूछना कि मैम ये कौन से क्लास की बुक है. एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता होगी कि 11th और 12th की किताबें हैं ये. 11th में आपको 2 किताबें हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. क्लास 12th की 2 किताबें हैं, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. सो दीज 4 बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंटायर प्रिपरेशन. ठीक है.
सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी है यहाँ पे, काफी अच्छा इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। ठीक है, तो कई बार आपको देखो, आपको पता है कि आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, बट कई बार वो जो गाइडेंस आपकी लैकिंग होती है ना, कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कौन से पोर्शन से पढ़ना है, कौन से पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, वो लैकिंग होती है, और इसी वजह से आपके क्वेश्चन मिस होते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू नो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, एंड यू थिंक मैम फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चंस आर कमिंग। नाउ यू सी क्वेश्चन अगेन, 2016 was declared as the International Year of Pulses. ठीक है, and this year also, if any one of you can tell me which particular international year is this, अभी ये करंट में था, कौन सा ईयर है ये, इंटरनेशनल ईयर कौन सा है ये, इफ एनी वन ऑफ यू लेट मी नो। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई इंटरनेशनल ईयर है जो कि डिक्लेयर हुआ है, एंड वो आपके एनसीईआरटी में भी, आप एनसीईआरटी जाओ, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जाओ, यू विल रीड अबाउट पल्सेस, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, सो डेफिनेटली यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग दैट यू नो अबाउट पल्सेस। नाउ इट वाज पार्ट ऑफ करंट ऑल्सो, करंट का भी पार्ट था, तो यहां से क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था इन 2000 आई थिंक 16 और 17, द क्वेश्चन वाज देयर, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ pulses because of which the year 2016 was declared as the International Year of Pulses by the United Nations। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पे देखिए, इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोल, अब ये सवाल इंडिया पीपल इन इकोनॉमी, अगेन कोल वहां पे मेंशन्ड है, तो कोल माइनिंग के बारे में यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट ऑल्सो हैज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सो यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है कहाँ का, बेसिक का है, बट you have to be aware, you have to do the analysis and you have to be updated with the current part। इंडिया पेपर एंड इकोनॉमी अगर फिर से आप देखोगे, शुगर इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे सवाल भी वही आया है, डू यू अग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाउ यू विल सी दिस पैराग्राफ, दिस टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है, करंट से आ रहा है, बट थोड़ा सा अपडेट आप उसको कर सकते हो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दोज थिंग्स विच आर देयर इन द न्यूज, ओके, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बेसिक, जो आपके एनसीईआरटीज में टॉपिक्स जो मेंशन है, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का करंट आपको मालूम होना चाहिए, आपको अपडेट करके ही रखना है। आपको मैं एक क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ यहाँ, आई एम शोइंग यू द डिफरेंट, आई मीन सो मेनी क्वेश्चंस, एंड आई कैन शो यू सो मेनी क्वेश्चंस विच हैव डायरेक्ट लिंकेज फ्रॉम द एनसीईआरटी, बट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दोज न्यूज इन डिटेल। ठीक है, एनालाइज द फैक्टर्स फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल, अगेन कॉटन टेक्सटाइल आपका पार्ट है यहाँ पे। पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी, अगर आप मिनरल वाले चैप्टर में जाओगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा है और मेंस में भी ये सवाल आया है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में कई बार सवाल जो है वो रिपीट कर देते हैं, जो प्रीलिम्स में आया है, द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन इन द मेंस आल्सो इन सम अदर फॉर्मेट, बट द थीम इज सेम। ठीक है, account for the present location of iron and steel industry, you see all these industries that are located here, and then this is again it is a part of your NCERT। ठीक है, तो अब उसमें ये तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगी, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट दे हैव मेंशन्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एंड account for the present location of iron and steel industry away from the sources of the raw material by giving examples, so you have to provide examples as well। ठीक है, now what is the significance of industrial corridor? Now when you're reading about industries, industrial policy also becomes important, because industrial policy will definitely impact the type of जो investment हो रही है, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अगर आप देखोगे, इट इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, सो डेफिनेटली यूपीएससी विल एक्सपेक्ट दैट यू हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन गेन फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट। Okay, then enumerate the problems and the prospect of inland water transport in India, so these are again part of your NCERTs, but definitely you have to be more aware about these problems and you have to keep on highlighting the problems, right? Bring out the socio-economic effects of introduction of railway in different parts. Again, this was the question which everyone was saying ki ma'am, I don't know from where this question is coming, this is the way UPSC is asking, like it is asking anything, so how we should prepare for it? Again I will show you कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ना आपका, जो बोलते हैं लोग कि जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आई विल शो यू कि ये जो पार्ट है ये वही उसी किताब का है। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होते, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है ये, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यू विल सी 1 to 1 पैराग्राफ, द पैराग्राफ दैट दे आर मेंशनिंग, एंड
डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ से कर सकते थे, ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा है। डेफिनेटली आई विल से कि आप भगवान नहीं हो, यूपीएससी में आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स ऐसे हैं वेयर यू विल नीड गाइडेंस, इंटरवेंशन विच विल मिनिमाइज योर प्रिपरेशन टाइमिंग। ठीक है, so I will suggest here how you can do, how you can prepare for geography, because by now you might have been filled with so many information कि आपका दिमाग हो सकता है burst कर रहा हो कि कैसे याद रखेंगे ये सब। I'll ask the team to share the PDF, right? So but how you can solve this, how you can reduce the timing for geography preparation, and how you can attempt. So first is definitely, if you are going by any lectures, जो भी आप लेक्चर देखते हो, एनी लेक्चर यू कैन सी द गुड वन, नॉट द टाइम वेस्टेज लेक्चर्स। आपका लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहां से देख रहे हो आपको एग्जैक्ट एप्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो इफ यू आर गेटिंग दैट एप्ट इंफॉर्मेशन, देन दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइमिंग वेस्टिंग सीइंग सो मेनी लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब और इधर उधर के फाउंडेशन से। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वॉचिंग इट, रीडिंग द सोर्सेस। ठीक है, पहला रीड में ही मैं उसको इंक्लूड करूंगी। वॉच द लेक्चर्स, and because definitely guidance is important for the technical part in geography. Human geography you can prepare by reading, but you have to have some information, that technical clarity about the technical subjects. So watch it, then read. ठीक है, पहले आप पढ़ोगे, देखोगे, फिर आप पढ़ोगे, आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि किस कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है एनसीईआरटी से while you are seeing those lectures. Restructure. So once you have watched it, once you have read the sources, then you have to restructure the syllabus जो मैंने आपको दिखाया. So that restructure can be based on the micro themes. Micro themes अब कैसे आएगा आपके पास? On the basis of the UPSC questions. So we do have this PDF of micro themes. It is also available in the market. You can have it. You can also have the PDF. ठीक है, तो ये माइक्रो थीम में आपको ये आपका टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगा कि क्या क्या यूपीएससी में सवाल आए हैं इन एक पर्टिकुलर टॉपिक से। then retain becomes important because you are reading so many things, different आप syllabus पढ़ रहे हो, different subjects पढ़ रहे हो, तो आपके पास already बहुत information है। how you are able to retain? so retain के लिए क्या important है? definitely you will have to do the revision. ठीक है, revision कैसे आप करोगे? so like either it can be when you are reading a lecture, you are when you are watching the lecture, then you are reading it and then you are revising it before coming to the next lecture. ठीक है, तो आपका रिवीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बिना रिवीजन करके आप दूसरा लेक्चर देखते हो, कभी भी दूसरे किसी का भी लेक्चर आप देख रहे हो बिना रिवीजन के, अगर आप देख रहे हो तो पुरानी मेमोरी आपकी फेड होगी। सो इट्स बेटर दैट वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर यू रिवाइज इट and then reproduce. So now the test becomes equally important. That test of prelims or that test for the mains, you have to write it. So these 5 arts are very important when you are approaching for geography. Why? Because this is a very technical subject. You need practice. एंड प्रैक्टिस कैसे होगा? आप जब ये 5 आर को फॉलो करोगे, देन द प्रैक्टिस विल बी देयर एंड देन डेफिनेटली आप सुनोगे बच्चों से कि मैम ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्यों क्लियर हो गया है? दे आर नॉट द गॉड्स, राइट? they have achieved that level by doing the regular practice. And why, how they have been doing it? They have been following these things, right? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ आपको बहुत यूनिक सा बताऊंगी, बट ये एक प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। दिस प्रोसेस यू मस्ट बी नोइंग दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। ठीक है, नाउ हाउ व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? बिकॉज अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको बिकॉज आपका टाइम कंजम्पशन जो है वो आपको मिनिमाइज करना है, दैट यू हैव टू रिड्यूस, राइट? सो डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग व्हाट कुड बी द सोर्सेस दैट यू आर रेफरिंग। सो यू फॉलो वन सोर्सेस, जो भी मेन सोर्सेज हैं आप उसको फॉलो करो। ठीक है, जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो वहां पे कोई ना कोई आपको टीचर बताएगा। अब आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द गाइडेंस, बट यू हैव टू हैव दैट एग्जैक्ट सोर्सेज वेयर यू हैव टू रेफर एंड दैट सोर्सेज विल मिनिमाइज द टाइम। ठीक है, नाउ सेकेंड इज explaining. So definitely I was telling this before also, especially in the technical portion, physical geography, it is very important that you understand the concept in a very layman language. आपको बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक जो लेमैन की भाषा होती है कि भाई बिल्कुल ही समझा दिया बोल करके, कुछ उसमें टेक्निकल चीजें नहीं बोली, अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली है, then that topic will be nothing. It will just like a cakewalk. आपके लिए वो टॉपिक फिर होगा नहीं, बिल्कुल टफ नहीं होगा। Then regular map practice, because I told you in the beginning maps are very important. So in my class what I generally do, जब भी मैं कोई एक लोकेशन लेती हूँ, say for example when I am talking about the desert, the formation of high pressure,
आई कीप ऑन शोइंग द स्टूडेंट्स कि ये एरियाज हैं जहाँ पे डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे माउंटेन के कारण डेजर्ट बने हैं, जहाँ पे कोल्ड करंट के कारण डेजर्ट बने हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर के कारण डेजर्ट बने हैं. So it's better that once you are doing the lecture, you read, you practice then and there themselves, right? So like when I am doing the mountain, जब मैं mountain के बारे में बता रही हूँ बच्चों को, so that time I am also telling my students that you have to see the location of the mountains. These are the folded mountains. These are the fault mountains. These are the block mountains. तो जब आप पढ़ रहे हो और उसी टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, that is very very efficient. बहुत efficiency आपकी बढ़ती है. Then definitely you have to know that how you have to approach for NCERT reading. आपको मालूम होना चाहिए NCERT का एग्जैक्ट तरीका क्या है पढ़ने का, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है. So like again I will tell, I don't know what others are doing, but what I do in particularly in my class, so whenever I am dealing with a particular topic, say for example I am dealing with that chapter called evolution or the origin of the earth, जो पहला चैप्टर है आपकी NCERT का, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. तो उसी टाइम पे जब मैंने वो टॉपिक कवर किया तो मैंने आपको बोला कि गो एंड वॉच दैट एंड आई मीन रीड दैट एनसीईआरटी, दैट चैप्टर. आई एम नॉट गिविंग यू सो मेनी होमवर्क. I'm giving you just one chapter or sometimes maybe one or two paragraphs. So that paragraph is not tough for you. So once you have understood the lecture, you are going back and reading those NCERT chapters. So that becomes very easy. And I also tell my students that once you are coming back, you have to be ready with the answers if I am asking you something. तो जो 15-20 मिनट होता है मेरी क्लास के स्टार्टिंग का, आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉट इन द प्रीवियस लेक्चर. जो मैंने पहले पढ़ाया है उससे मैं पूछती हूँ. ये अप्रोच आप कभी कहीं से भी फॉलो कर सकते हो, कहीं से भी, बट फॉलो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. So you watch, you read, and you try to give answers related to that topic. That will be very helpful. Note making, again, note making should be in a crisp form. You must be writing the keywords ताकि बहुत ज्यादा bulky notes आपके ना हो जाए. और that must also be aligned with the UPSC pattern. ठीक है, तो I can what we can do, like हम आपको एक probable areas बता सकते हैं कि these are the probable areas which you have to complete with the current part, right? So definitely, because I am also taking the Samachar Manthan classes. तो समाचार मेरे साथ क्या होता है generally, that when I am taking the Samachar Manthan classes, I am covering the current portion and then I am doing the foundation also. So foundation plus समाचार मंथन आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो entirely cover हो जाता है. So you don't have to rush for any other sources. Everything is covered. Your note is prepared in one particular thing only, right? Then regular class homeworks are very important. आप होमवर्क कुछ भी कर लो, जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसको फिर से रिवाइज करो, आप उसके टेस्ट लगाओ. एंड देन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज, जो मैंने आपको अभी दिखाया है फॉर बोथ. दिस वाज फॉर मेंस. मे बी इन कमिंग टाइम आई विल आल्सो बी शोइंग द क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स. एंड यस, स्टूडेंट्स हैव कम टू मी एंड दे आर टेलिंग मी, मैम, these are the direct questions जो कि यूपीएससी में आए हैं, क्लासेस से आए हैं. They were so happy about it. So you have to prepare in such a way that you go by the PYQs and you try to have that probability कि क्या क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. And definitely regular answer writing practices, that is equally important. So when I am teaching you a particular topic, I am also giving you the question which is related to that topic, and I also keep on checking. I give my students feedback. अभी भी फाउंडेशन के लेक्चर में when I take class, I give my students particularly the questions that is asked from that topic, or if that it is not asked, I give them the probable questions. क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आए ही हुए हैं, बट कुछ प्रोबेबिलिटी भी होती है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो आई कीप ऑन गिविंग इट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फ्रॉम वेर एवर यू आर फॉलोइंग दिस, राइट? सो कीप ऑन राइटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो वट एवर टॉपिक यू आर रीडिंग, यू ट्राई टू रिलेट इट विद द जो मेंस में सवाल आए हैं उससे रिलेट करो. अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो यू ट्राई टू हैव सम क्वेश्चन which has the probability to be asked in the UPSC, right? So this is all about, guys. I hope this was not a very long, I think it took me 1 hour. So now I am open for discussion.